Good morning, students. Students, we are continuing our topic that is the human male reproductive system, right? Students, हमने human male reproductive system का first part that is scrotum, second testes, third epididymis, fourth vas deferens and fifth ejaculatory duct तक complete कर लिया था. आज हमने start करना है इसका sixth part that is urethra, right? Urethra. स्टूडेंट्स यूरेथ्रा जो है इन मेल दैट कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमेन. सो इट कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन, राइट. तो जो यूरेथ्रा है बेटा दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स. ह्यूमन मेल यूरेथ्रा इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, membranous urethra and penile urethra. Prostatic, membranous and penile urethra. बेटा जो prostatic urethra है that is the one which is surrounded by prostate gland. This is the prostate gland. Right, so the urethra, this one which is surrounded by prostate gland, it is known as prostatic urethra. Membranous urethra, it is surrounded by bulbourethral gland. But this one is the bulbourethral gland, also known as Cowper's gland. तो इसके जो surrounding है this one, ये वाला शॉर्ट होता है ये काफ़ी. दिस वन इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, राइट. एंड द लास्ट वन इज द पिनाइल यूरेथ्रा. पिनाइल यूरेथ्रा द नेम इंडिकेट इट पासिस फ्रॉम द पेनिस. सो दिस इज द पिनाइल यूरेथ्रा, राइट. स्टूडेंट्स, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कैरीज ओनली यूरिन. It carries only urine. Membranous urethra short होता and carries both urine and semen. And carries both urine and semen. Penile urethra, it is long and passes through penis. It also carries both urine and semen. So there are three types of urethra. Clear? तीन तरह के urethra हो गए, prostatic, membranous and the penile urethra. Clear? Now बेटा जो urethra है that opens outside. How it opens? बेटा it opens outside by urinary meatus. Urethral meatus. Meatus means opening. So we know that at the tip of the penis is present a urinogenital aperture. Urino for carrying urine, genital for carrying this semen. So this is a common opening. So urethra opens at the tip of the penis by a urinogenital opening, right? और बेटा ये जो urethra होता है इस पे दो sphincters होते हैं. Sphincter is the modified muscle, right, that regulates the any opening. So there are two sphincters. One is the external sphincter. External sphincter that surrounds the membranous urethra here, right. So there are two sphincters. External sphincter and internal sphincter. External sphincter is the one that surrounds the membranous urethra.
right? And this is made up of striated muscle fibers. Striated muscle fiber, तो striated हैं तो this is voluntary muscles, right? Whereas internal sphincter is the one which is present at the neck of the bladder. See here, at the neck of the bladder, right? And this is made up of smooth muscle fibers, so it is involuntary in nature. This is present at the neck of the bladder, and it consists of smooth muscle fibers. So it is involuntary in nature, right? तो ये था हमारे पास यूरेथ्रा के बारे में. एंड द 7th पोर्शन इज द पेनिस. पेनिस इज द मेल copulatory organ. It's a male copulatory organ that helps in copulation, that helps in inserting the semen inside the female's body. So it's a male copulatory organ, right? And we know that penis it carries both urine as well as it carries semen. Now beta जो penis है that is actually जो उसका terminal part होता है, the terminal part, टिप वाला, the terminal part of the shaft of penis is bulging type. थोड़ा सा bulging portion होता है, and that bulging portion is known as glans penis, right? And glans penis is covered by movable skin, right? That movable skin, this movable skin is known as prepuce, or foreskin, right? And a special type of sebaceous gland is also found on the prepuce. A special type of sebaceous gland found on prepuce. And is known as preputial gland. Right? And see, removal of prepuce, बेटा कुछ कास्ट्स वगैरह में, मोहम्मडन्स में, बेटा जो prepuce है, foreskin, that is removed. It's a kind of a ceremony. So removal of prepuce by surgery, it is known as circumcision of penis. So circumcision of penis is removal of prepuce. By surgery, right? So जो penis है, actually penis contain erectile tissue that gets erected when the male is sexually excited. The penis got erected. So penis has erectile tissue, right? So when the male is sexually excited, the erectile tissue is filled with blood. It gets engorged with blood, causing the penis to become erect. Clear? Now penis as a erectile copulatory organ, जो बेटा penis है उसमें specially एक mass होता है, that mass, cylindrical masses होते हैं erectile tissue के. So penis has 3 cylindrical masses of erectile tissue,
right? So penis consists of 3 longitudinal cylindrical masses of erectile tissue, and these masses are कैसे हैं बेटा? These masses are actually 2 dorsal corpora cavernosa and 1 ventral, that is corpus spongiosum. Right? So 2 dorsal corpora cavernosa and 1 ventral corpus spongiosum. So these masses are actually, these are right and left, and this is the median. राइट बेटा, ये जो 2 डॉर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, दे डू नॉट रीच द टिप ऑफ द पेनिस, एट द एंड ऑफ पेनिस तक नहीं पहुंचेंगे. ईच ऑफ देम दे टर्मिनेट्स अंडर द कवर ऑफ ग्लैंड्स पेनिस. ग्लैंड्स पेनिस याद होगा, बल्जिंग पोर्शन, उसके कवर के नीचे तक ही ये एंड हो जाते हैं. राइट? एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दिस वन, इट कंटिन्यूज फर्दर. Its terminal part is expanded to form a conical enlargement called glans penis. Clear? So this one actually expands as a conical structure and forms a glans penis. Clear? So now let's discuss it. इसके डायग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं. और ये देखो, बेटा ये जो हम सेक्शन अभी ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये सेक्शन हम पेनिस का ड्रॉ कर रहे हैं. राइट? दिस अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पेनिस. इट विल बी क्वाइट राइट. सी, this one, this is a superficial dorsal vein. ऊपर वाली superficial dorsal vein of the penis, and this one is a deep dorsal vein. See this one, it's the deep dorsal vein. Right? And this one, the dorsal nerve of the penis, this one, dorsal nerve. Right? This is dorsal artery of the penis, this one here, dorsal artery. Clear? Now this one, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये अंदर वाली, this one is कॉर्पस कैवर्नोसा या कॉर्पोरा कैवर्नोसा. राइट? और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बीच में आप, दिस इज डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस. क्लियर? एंड ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ड्रॉ करी, दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. और ये बीच में ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, दिस वन इज द पेनाइल यूरेथ्रा, जो पेनिस में से पास करता है. क्लियर? ये जो बाहर वाली है ये स्ट्रक्चर, ये सारी स्किन. So this is the structure of the penis. Right? So
corpus spongiosum, it is enlarged only. So this one is enlarged at the tip of the penis to form glans penis, और glans penis के ऊपर ही urinogenital aperture होता है और glans penis ही cover होती है with the help of foreskin और prepuce. Right? Beta, this structure, penile urethra, it carries both urine and semen. But remember one thing, the two never get passed at the same time. दोनों एक ही टाइम पे कभी पास नहीं होंगे. Right? Now the erection of the penis. How it is controlled? Erection of the penis, it is controlled by ANS. ANS is autonomic nervous system. Erection of penis. So it is a phenomena which is purely vascular. मतलब blood vessels का रोल रहेगा इसमें, and it is controlled by ANS, autonomic nervous system, and it is all due to, erection is due to the increased blood supply. Due to increased blood supply, due to dilation of penile arteries. आर्टरीज जो है वो पेनिस की डायलेट हो जाएंगी ड्यू टू डायलेशन ऑफ penile arteries. That causes the enlargement and the hardening of the penis. Right? So this is about the male copulatory organ penis. Now the last, इसका जो 8th portion है, that is a male accessory glands. Male accessory glands. Right? Male accessory glands और accessory reproductive glands भी हम कह सकते हैं इसको. कौन कौन सी हैं? एक तो seminal vesicles, right? ये seminal glands कितनी होती हैं? ये 2 in number. Prostate gland 1. नेक्स्ट है काउपर्स ग्लैंड, ये भी दे आर 2 in number. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल, बेटा सेमिनल वेसिकल 1 पेयर है, सैक लाइक है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. राइट? ये दिस 1 2 seminal vesicle. This is present at the base of urinary bladder. See the duct, आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था, seminal vesicle की duct joins with the duct of the vas deferens. सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डेफरेंस की डक्ट कंबाइन करके एक छोटी सी 2 सेंटीमीटर की डक्ट बनाती हैं और दैट इज़ अ इजैकुलेटरी डक्ट. राइट? और जो सेमिनल वेसिकल होती है दैट इज़ लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम. सो इट इज़ लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम which secretes seminal fluid. राइट? बेटा ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है ये काफ़ी लुब्रिकेटिंग होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है, जेली लाइक होता है और इससे बनता है अबाउट 60 to 70% ऑफ द बल्क ऑफ द सीमेन. क्लियर? सो 60 to 70% ऑफ द बल्क ऑफ द सीमेन इज made by seminal vesicle. Is contributed by it. अगर मैं इसकी pH की बात करूँ, that slightly alkaline pH, इसकी जो secretion होती है that slightly alkaline is
about 7.3 pH, right? इट इज़ 7.3 to 7.4 pH ले सकते हैं हम. और यही pH के कारण इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द मेल यूरिथ्रा. बेटा क्योंकि मेल का यूरिथ्रा का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, लेकिन इसका नेचर क्या है, एल्कलाइन. सो इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज दैट एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द मेल यूरिथ्रा एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का भी जो रीजन होता है दैट इज स्लाइटली एसिडिक, तो उसको काउंटरएक्ट करेगा ये, राइट. नाउ द सेक्रीशन में क्या कुछ है, सेक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, secretion of seminal vesicle contain number 1 very important is a fructose. Fructose is a sugar. It provides energy to the sperm. It is found only in the seminal fluid, right? इसको हम sperm fuel भी बोलते हैं. So it acts as sperm fuel that helps it to run or swim. Second, prostaglandins. प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेटा यूट्रस की कंट्रैक्शंस को स्टार्ट कराता है. जब सीमेन इंट्रोड्यूस हो जाता है फीमेल की बॉडी में तो वो यूट्रस की कंट्रैक्शंस को स्टार्ट करवाता है ताकि जो स्पर्म है वो ईजिली ओविडक्ट तक मूव कर सके. सो प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प इन यूट्रस कंट्रैक्शंस. क्लियर. नेक्स्ट, क्लोटिंग प्रोटीन्स. बेटा ये फीमेल को कोगुलेट करने में हेल्प करती हैं, मतलब एक तरह से थिक जमाने में हेल्प करती हैं आफ्टर इजैकुलेशन. सो दीज हेल्प्स टू कोगुलेट सीमेन आफ्टर ejaculation. क्लियर. मोर ओवर बेटा इसके अलावा जो सेमिनल वेसिकल है उसकी सिक्रीशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आइनोसिटॉल शुगर, सिट्रेट एंड इवन सेवरल प्रोटीन्स. Clear? Now next is a prostate gland. Next is a prostate gland. But a prostate gland, it is located below the urinary bladder. So it is located below the urinary bladder. See, this one is a prostate gland. So it is located below the urinary bladder, right? And it is unpaired gland, unpaired single, it is unpaired gland. और इसमें 5 लोब्स होती हैं, इट सेल्फ अंदर 5 लोब्स होती हैं. इट हैज़ 5 लोब्स, राइट. वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं साइज होता है लाइक दैट ऑफ अ गोल्फ बॉल, राइट. और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कुछ 30 से लेकर 40 तक ट्यूबुलो एल्वेओलर ग्लैंड्स का ग्रुप होता है. बेटा ये आप लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा होगा, ट्यूबुलो एल्वेओलर ग्लैंड्स, जिसमें ट्यूब भी और सैक दोनों सक्रीट करते हैं, राइट. तो ऐसे कुछ 30 से 40 ट्यूबुलो एल्वेओलर ग्लैंड्स की तरह से हम कह सकते हैं कलेक्शन है, राइट. एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका जो सक्रीशन होता है दैट इज़ इवन स्लाइटली अल्कलाइन. इसका भी स्लाइटली
एल्कलाइन सोल्यूशन सिक्रीशन होगा, राइट। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगी बेटा वो यूरेथ्रा में ओपन होती है बाय मैनी फाइन अपर्चर्स। वो मैनी फाइन अपर्चर्स यही होंगे, काफ़ी सारे फाइन अपर्चर्स की हेल्प से ये यूरेथ्रा में ओपन होएगी। एंड जो इसका सिक्रीशन होता है वो मिल्की होता है, काफ़ी स्टिकी होता है, इसका भी जेली लाइक होता है, थिक होता है। एंड इट फॉर्म्स 30% ऑफ द पार्ट ऑफ द सीमेन। और ये बेसिकली हेल्प किस में करता है? इट हेल्प इन स्पर्म एक्टिवेशन, स्पर्म एक्टिवेशन में हेल्प करता है, क्लियर। और जो इसका सिक्रीशन होता है उसमें अगेन सिट्रिक एसिड, इट कंटेन्स, सिक्रीशन कंटेन सिट्रिक एसिड, फॉस्फेट, कैल्शियम, क्लॉटिंग एंजाइम्स। इसके अलावा प्रोफिब्रिनोलाइसिन भी इसमें प्रेजेंट होता है। सो बेटा जो सिक्रीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जब कंबाइन करते हैं विद द सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल, तो वो दोनों क्या हो जाता है बेटा? क्लॉटिंग एंजाइम्स, पहले भी थे क्लॉटिंग प्रोटीन्स, राइट। अब यहाँ पे क्या है? क्लॉटिंग एंजाइम्स है। तो वो दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? कोगुलेट हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं जम जाते हैं, राइट। इन द कोगुलेटिंग सीमेन, जब बेटा सीमेन कोगुलेट होगा तो स्पर्म्स को मोबाइल होने में बहुत मुश्किल होएगी, मूव नहीं कर पाएंगे। और ये सही भी है, क्योंकि अगर वो इतना मूव नहीं कर पाएंगे तो उनकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। आफ्टर सम टाइम क्या होता है? फिब्रिनोलाइसिन ये वाला, ये सीमेन को अगेन लिक्विफाई कर देता है। लिक्विफाई करने के बाद सीमेन में से अब स्पर्म्स इजीली मूव कर सकते हैं। सो क्लॉटिंग एंजाइम हेल्प in coagulating, whereas fibrinolysin liquefies the semen, राइट। और ये क्यों करे कोगुलेट? बिकॉज एनर्जी जो है स्पर्म्स की वो कंजर्व रहे। और लिक्विफाई क्यों करा? अब ये मूव कर सकते हैं, मूव करेंगे तभी तो ये ओविडक्ट तक पहुँचेंगे, क्लियर। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाए उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। बेटा आइटिस टर्म जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन, इन्फ्लेम्ड कंडीशन, राइट। सो secretion of prostate gland is basically to nourish and to activate the sperms to swim. Third gland is the Cowper's gland और bulbourethral gland, और bulbourethral gland। बेटा जो काउपर्स ग्लैंड है या bulbourethral ग्लैंड है, इनका जो नंबर है दैट इज़ 2। सेमिनल वेसिकल भी 2 थी, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड थी, जस्ट एक ही थी। लेकिन काउपर्स ग्लैंड इज़ 2 इन नंबर। और जो काउपर्स ग्लैंड है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, राइट। सो दिस इज प्रेजेंट on the either side so this is present on the either side of membranous urethra। देख लेते हैं हम डायग्राम में अभी। see this one is bulbourethral gland और ये membranous urethra। membranous urethra के सराउंडिंग है, ये उसके पास हैं, देखो bulbourethral glands, क्लियर। और ये भी ओपन होती है इनटू पेनाइल यूरेथ्रा, दे ओपन इनटू पेनाइल यूरेथ्रा। दे ओपन इनटू पेनाइल यूरेथ्रा। और बेटा जो इसका सिक्रीशन होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, कोई मिल्की नहीं होता, कोई थिक नहीं होता, इतना जेली लाइक होता है, स्लाइमी सा होता है, जैसे स्लाइमी फ्लूइड सा होता है उस तरह से, राइट। सो इट्स secretion is transparent, jelly like,
स्लाइमी सा लिक्विड होता है इसका, राइट। और जो इसका pH होता है दैट कम्स आउट टू बी 7.2 pH. pH इज़ 7.2. और ये भी बेटा हेल्प करता है कि यूरेथ्रा की एसिडिटी को ओवरकम किया जा सके, और इवन ये क्लीन करता है, राइट। किसको क्लीन? इट क्लीन्स इट फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स. तो ये यूरेथ्रा को क्लीन सा कर देता है, मेल के यूरेथ्रा को क्लीन कर देगा सो दैट स्पर्म्स कैन ईजिली मूव. और मेन काम इसका, इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द टिप ऑफ द पेनिस. इट लुब्रिकेट्स द पेनिस. So the main function of the Cowper's gland or the bulbourethral gland is that beta it lubricates the penis, right. Its alkaline fluid also neutralizes the acidity of the urethra, right. Now semen क्या है beta? Semen, it is the liquid which is ejaculated from the male during sexual act. It basically consists of sperms plus accessory reproductive gland fluid. यानी कि sperms और fluid को मिला के दोनों को क्या कहा जाता है बेटा? semen. So it is composed of the fluid from the glands and the sperms. वो फ्लूइड कहाँ से आएगा? फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, फ्लूइड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड फ्लूइड फ्रॉम द काउपर्स ग्लैंड, राइट. लेकिन जो बल्क ऑफ सीमेन है दैट इज मेड बाय सेमिनल वेसिकल, दैट इज 60 to 70%, राइट. और जो एवरेज pH होती है ना सीमेन की, दैट कम्स आउट टू बी 7.3, राइट. और जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है स्पर्म्स का सीमेन में, दैट इज स्पर्म्स हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ 24 to 72 hours in the semen. And sperms can even be preserved for many years below -100 degree temperature. So sperms can be even preserved. -100 degree. और इसके अलावा जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो कितना होता है? 20 to 120 million per ml. नॉर्मल स्पर्म काउंट. अगर बेटा कम या ना प्रोड्यूस हो स्पर्म्स, या तो एब्सेंस ही हो, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम, नियरली एब्सेंट, तो उसको बोलते हैं हम एज़ूस्पर्मिया. एज़ूस्पर्मिया इज sperms are absent. Sperms are absent means sperms are either absent or nearly absence, right? या बहुत कम, nearly absence or absence of sperms, right? और जो वॉल्यूम होता है सीमन का, वॉल्यूम ऑफ सीमन कम्स आउट टू बी 3 to 4 ml. और बेटा जो ह्यूमन मेल है दैट इजैकुलेट्स, कितना? जो ह्यूमन मेल है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स 200 to 300 million sperms during coitus. Coitus is sexual intercourse. During coitus, of which for normal fertility के लिए बेटा क्या कंडीशन है? एटलीस्ट 60% of sperms have normal shape
and size, whereas at least 40% of them क्या शो करेंगे? 40% of them show vigorous motility, movement, vigorous motility. Important है ये लाइन्स, राइट? तो ये था बेटा हमारे पास ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक तो इसका हार्मोनल कंट्रोल और इसके डिसऑर्डर्स। क्लियर? तो आज हमने डिस्कस करना शुरू करा था फ्रॉम द यूरेथ्रा, देन पेनिस, देन एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में और सीमेन के बारे में।